Children, now I'm taking question number 16 of exercise 7 point, the last exercise say of integration 7.11, right? तो इसमें हमें इंटीग्रेट करना है दिस फंक्शन 0 to pi log 1 plus cos x dx. ठीक है, this is the question of this exercise, in which this is one of those questions in which we have to use more than one property. Even in this question we have to use the properties many times. ठीक है, तो ये थोड़ा different भी है question, and this is very important also. Important questions. This has come in board exams also many times. So we'll start it like I have taken this function as I. तो इसमें मैं property लगा रही हूँ integration 0 to a fx dx can be written as integration 0 to a f of a minus x dx. ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to pi log 1 plus cos pi minus x dx. Fine. Then this is equal to integration 0 to pi log 1 minus cos x. cos 180 माइनस थीटा इज नेगेटिव कॉस थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है. ठीक है, सो यू गॉट 1 माइनस कॉस एक्स. नाउ सपोज दिस इक्वेशन आई कंसिडर एज 1 एंड दिस वन एज 2, तो आई एम एडिंग दीज टू. लेफ्ट हैंड साइड इज आई गोइंग ऑन. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2i, लेफ्ट साइड i प्लस आई विल गिव यू twice of I is equal to integration 0 to pi log m plus log n. I'm using as log mn. ठीक है, log of 1 minus cos square x dx. ये मैंने स्टेप स्किप किया है, मतलब डिटेल वर्किंग नहीं दिखाई है. एंड यू कैन ऑल्सो गो लाइक दिस. log m plus log n, you know by property log m into n. So 1 plus cos x into 1 minus cos x will give you 1 minus cos square x, that is log sin square x. तो इसको आप लिख सकते हैं 2i is equal to integration 0 to pi log, पहले यहीं लिख देते हैं, integration 0 to pi log sin square x dx. Then this 2 by the property of log will come in front, and we can write it twice of log sin x dx. ऐसा लिखा जा सकता है log sin x होल स्क्वायर. और आपको मालूम है कि log x is to the power m we can write as m log x. तो ये m आगे आ गया, राइट. देन दिस 2 हैज़ गॉट कैंसल्ड बाय दिस. तो हमारे पास i की एक वैल्यू आ गई थोड़ी सिंप्लीफाइड, 0 to pi log sin x dx. ठीक है, नाउ वन मोर प्रॉपर्टी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इज if f of 2a minus x, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स. अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to twice of integration 0 to a एफ एक्स डी एक्स. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज हुज प्रूफ वी हैव डन. ठीक है, तो अगर आपका एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो तभी ये एप्लीकेबल है. देन वी कैन राइट 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स एज ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, सो हियर 2a के प्लेस पे है पाई, एंड यू नो दैट साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली. हियर in this particular question sin of pi minus x is equal to sin x. ठीक है, तो पाई को मैं 2a कंसीडर कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा twice of 0 to pi by 2 because pi is twice of pi by 2. तो क्या बन जाएगा twice of 0 to a, that means twice of 0 to pi by 2 fx dx. ठीक है, so we can write it as twice of I is equal to twice of integration 0 to pi by 2 log साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, और इसे अब मैं I1 मान ले रही हूँ, नया इंटीग्रल. ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1, I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1. इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log sin x dx. I'm again using the property integration 0 to a f x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ठीक है, तो थोड़ा ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, and we'll be getting पहले देखो यहीं पे लगाते हैं is equal to integration 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x dx, that I can write as
इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log of sin 90 minus theta is cos x dx, equation number 4 and this is equation number 5. ठीक है. Now like the earlier, ठीक है, आई एम गोइंग टू ऐड द फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन. तो i1 प्लस i1 2i1 आ जाएगा, उससे भी ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा. देखो इक्वेशन नंबर 4 प्लस 5 वी गेट i1 प्लस i1. व्हाट डू वी गेट? i1 प्लस i1 इज इक्वल टू, यहाँ फिर लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है तो वी आर राइटिंग इन शॉर्ट. i1 इज log sin x, ठीक है, और ये है log cos x, तो इट विल बी log sin x प्लस log cos x दैट वी कैन राइट एज log sin x cos x. तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log of sin x cos x. ठीक है, एंड देन इन दिस पार्ट आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. इससे क्या बेनिफिट होगा? दिस विल चेंज टू log sin 2x और ये 2 कांस्टेंट है तो log की प्रॉपर्टी से हो जाएगा log m अपॉन n, वी कैन राइट एज log m माइनस log n. ठीक है, आपको प्रॉपर्टी मालूम है log की, दैट log ऑफ m अपॉन n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n. ठीक है, तो आप इसे लिख सकती हैं ट्वाइस ऑफ i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log ऑफ sin 2x minus integration 0 to pi by 2 log of 2 dx here as well as here. यहाँ भूल गई थी मैं लिखना, तो आप लिखेंगे. ठीक है, dx. Then you know that log 2 can be taken out, तो ये इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया. अब काम करना है इस पे. ठीक है, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं. ट्वाइस ऑफ i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log sin 2x dx माइनस दिस ऑन इंटीग्रेटिंग log 2 बाहर आया, राइट, एंड ये हो गया x एंड लिमिट हो गया 0 to pi by 2. तो अगले स्टेप में आई कैन राइट इट एज pi by 2 log 2 बिकॉज इट इज pi by 2 माइनस 0 एज द लिमिट, है ना. तो क्या हमें मिला? 2i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी है, हाँ, बिकॉज वी आर यूजिंग प्रॉपर्टीज सो मेनी टाइम्स, माइनस pi by 2 log 2. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आई. अब हमें क्या करना है? इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं हमारे पास इक्वेशन है कि i इज इक्वल टू 2i1, तो ये जब i1 सॉल्व होगा तब i निकलेगा, है ना. सो दिस इंटीग्रल आई एम टेकिंग सेपरेटली, क्योंकि ये तो सॉल्व हो ही चुका है, तो इस पे काम करते हैं. नाउ टेकिंग दिस वन 0 to pi by 2 log ऑफ sin 2x dx. इसमें अगर मैं सब्सटीट्यूशन पे काम करूं, देन लेट आई कंसिडर 2x इज इक्वल टू t. ठीक है, सब्सटीट्यूशन से जा रहे हैं हम, तो 2 विल बी इक्वल टू dt बाई dx, और आई कैन से dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt, एंड लिमिट क्या हो जाएगी? व्हेन x इज 0 t इज 0, लोअर लिमिट तो सेम है, 0 पे 0 ही रहेगी, एंड व्हेन x इज pi by 2 t विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज pi. ठीक है, तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल आ रहा है? इंटीग्रेशन 0 to pi log sin t हाफ ऑफ dt, तो हाफ बाहर आ गया इंटू dt. अब एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इफ साइन, अभी जो लगाई थी साइन 2a माइनस ये वाली है, f2a माइनस एक्स एफ एक्स अगर इक्वल हो f2a माइनस एक्स, इफ इट इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आई कैन राइट दिस 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स एज ट्वाइस ऑफ 0 to एफ एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे ऐसा हो पा रहा है साइन पाई माइनस साइन 2a माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस टी विल बी साइन टी इट सेल्फ. आ रहा है ना आपको समझ में? साइन ऑफ 2a की जगह पाई चल रहा है, तो पाई माइनस टी इज व्हाट? साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा इट सेल्फ, है ना. तो हम लगा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? जो हमने अभी लगाई थी. कौन सी लगाई थी? इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स वी कैन राइट एज ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स. तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, हाफ तो ऑलरेडी था बाहर, ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 2 log sin t dt. Now these two are going to get cancel. ठीक है, अब हमारे पास एक वेरिएबल चेंज की प्रॉपर्टी थी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी होने वाला है. इंटीग्रेशन 0 to a
एफ एक्स डी एक्स, या ए टू बी था उसमें लिमिट, इन जनरल ए टू बी कुछ भी लिमिट हो, डी एक्स कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ टी डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है ना. सो दिस टी आई एम गोइंग टू रिप्लेस विथ एक्स. ठीक है, तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स. अब आप एक बार I1 को देखो, आपने I1 किसे कंसिडर किया था, इसी को आपने I1 कंसिडर किया था, वेयर I1 इज 0 to π/2 log sin x dx. ठीक है, इट मीन्स ये जो इंटीग्रल है ये भी किसके इक्वल आ चुका है, दिस ऑल्सो हैज कम इक्वल टू I1 विच इज इक्वल टू I1. नाउ विल कम बैक टू दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन थी इसकी कुछ नंबरिंग कर देते हैं. टिल 5th वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6. ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 वी हैव, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 वी हैव ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल. ये जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल आ गया, ये इंटीग्रल I1 के इक्वल आ गया कि नहीं. log sin 2x को तो आप सॉल्व करके चल रहे थे, और ये जो वैल्यू आई आपने देखा कि इसी को हमने I1 माना था. इधर देखा ना, इन इक्वेशन नंबर विच वन, वेयर I1 कहीं लिखा था मैंने, वेयर I1 इज दिस. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये क्या है, I1 के इक्वल है. सो आई हैव गॉट अ कंडीशन दैट ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2. ठीक है, सो इट विल बी, अब ये तो किसकी वैल्यू आ गई, 2I1 की वैल्यू आ गई. 2I1 इज इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2. अब ये लाइक टर्म्स है तो I1 को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो क्या मिलेगा, 2I1 माइनस I1, दैट इज I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/2 log 2. ये किसका वैल्यू आया, I1 का वैल्यू आया. हमें I1 नहीं चाहिए, वी वांट I, एंड किसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1. From equation number 3 we have I is equal to twice of I1, so that is equal to twice of minus π/2 log 2. 2 से 2 कैंसिल होके आ जाएगा minus pi log 2. This is what value of I. So this is your required integral. ठीक है, तो क्वेश्चन लेंदी भी है और थोड़ा मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि इसमें बहुत मल्टीपल ऑफ प्रॉपर्टीज वी आर यूजिंग साइमल्टेनियसली वन आफ्टर द अदर, और मैक्सिमम हमारा इसका यूज़ हुआ. ठीक है, वेरिएबल चेंज का यूज़ हुआ, और इसका 2 प्रॉपर्टीज हमने यूज़ की, ये वाली एंड वेरिएबल चेंज. ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट. प्रैक्टिस इट इन रिटन. ये नहीं कि यू आर जस्ट वॉचिंग इट एंड यू आर थिंकिंग कि हमें आ गया है, यू हैव टू डू इट इन रिटन.